नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर दक्षिण क्षेत्र के मंडली के फर्स्ट एड कॉलेज में एनएससीसी कैंप। मोटिवेशनल स्पीकर मनोहर जामा का 24 मई शनिवार शाम 6 बजे उदगीर शहर में कार्यक्रम। कर्नाटक सरकार ने रामनगर का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण जिला। 75 साल में इतनी भ्रष्ट सरकार कभी नहीं देखी। कर्नाटक के पूर्व सीएम सदानंद गौड़ा ने वर्षगांठ समारोह को लेकर कांग्रेस की आलोचना की। दुनिया ने भारत की ताकत देखी। ऑपरेशन सिंधु को लेकर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण का बड़ा बयान। राहुल गांधी के ट्वीट पर जमकर भड़के गौरव भाटिया। राहुल गांधी को बताया निशान है पाकिस्तान। मानवता की हत्या। पाकिस्तानी अमेरिकी हीना अख्तर से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर दक्षिण क्षेत्र के मंडली के फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में एनएससीसी कैंप का आयोजन किया गया, जिसका आज अंतिम दिन रहा। आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीदर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सुरेखा ने भाग लिया। अतिथि के रूप में एनके जामशेट्टी आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर श्रीदेवी, प्रोफेसर दशरथ आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर धनराज बिरादर ने की। कैमरामैन महेश का कवरेज। नमस्कार, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಲಪ್ಪ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಅಂತ ಗಣಕಯಂತ್ರದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮನ್ನಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಾವು ದಿನಾಂಕ 17/5/2025ರಿಂದ 23/5/2025ರವರೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಲ್ದಾಳೆ ಅವರು 17ನೇ ತಾರೀಕು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿದ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಯುವಜನರ ಭಾರತ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕುರಿತು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ NSS ಘಟಕದ ಸಂಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಕಬಾಡೆ ಸರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಶರಣಪ್ಪ ಮಲ್ಗುಂಡ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಟಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ನವರಂಗ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 2ನೇ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿರಾದರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಯುವಜನರ ಪಾತ್ರ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಲೆಜನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 19ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರುವಂಥ ಮಧುಕರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮಹಿಳಾ ಬೀದರ್ ಇವರು, ಹಾಗೂ ಗಂಗಾಧರ್ ಕೋರಿ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್ ನೌಬಾದ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅರಿವು ಕುರಿತು ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ನಾಲೆಜನ್ನು ಗೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 20ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರುತ್ತ ಅಂಬ್ರೆಪ್ಪ ಎಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್ ನೌಬಾದ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಶೋಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್ ವಸತಿಯುಕ್ತ ಗೋಡಂಪಳ್ಳಿ ಬೀದರ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಪರಾಧ ತಡೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವು ಕುರಿತು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಲಿಸಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 21ನೇ ತಾರೀಕು ಬುಧವಾರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಚಿದ್ರೆ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ನೌಬಾದ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬೀದರ್ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬಾಲ್ಕಿ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಗ್ರಾಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ लाभवागिरुತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 22ನೇ ತಾರೀಕು भारत के मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर मनोहर जामा 24 मई शनिवार 6 बजे उदगीर शहर के चर्च रोड पर जमोर हाई स्कूल ग्राउंड पर है और स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशनल प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। मोटिवेशनल स्पीकर मनोहर जामा के साथ शाहीन ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल कदीर भी इस प्रोग्राम को संबोधित करेंगे। उदगीर शहर और आसपास के सभी स्टूडेंट्स व पेरेंट्स इस कार्यक्रम में पहुंचने की कोशिश करें। याद रहे यह शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक
जमुना हाई स्कूल के ग्राउंड पर यह प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग भाग लेकर कार्यक्रम को कामयाब बनाने की अपील मौलाना नौशाद कासमी ने की है। उदगीर से मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं और आप हजरात को ये बड़ी खुशी के साथ ये इत्तला दी जाती है कि उदगीर शहर में हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ शख्सियत जो आलमी शोहरत याफ्ता हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जनाब डॉक्टर मुनव्वर जमा साहब उदगीर तशरीफ़ ला रहे हैं और उनके साथ शाहीन ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं। इनका आने का उदगीर मकसद ये है कि हमारे बच्चे जो 10वीं 11वीं 12वीं और हाई स्कूल वगैरह के जो बच्चे बच्चियां हैं उनकी हिम्मत अफजाई करना, उनको जो लोकल समाचारों का सिलसिला लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी और राज्य भाजपा के विरोध के बीच कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण कर दिया है। उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार ने घोषणा की कि राज्य मंत्रिमंडल ने रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि रामनगर जिला मुख्यालय बना रहेगा, केवल जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले यह क्षेत्र बेंगलुरु जिले का हिस्सा था तथा प्रशासनिक कारणों से इस नाम को बरकरार रखा गया। उन्होंने कहा कि एक औपचारिक अधिसूचना जारी की जाएगी, इसके लिए कोई वित्तीय बाधा नहीं है। मूल रूप से यह बेंगलुरु जिले का हिस्सा था। मैंने खुद बेंगलुरु ग्रामीण जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। होसकोटे, देवरहल्ली, दोडबल्लापुरा, रामनगर, कनकपुरा और मुद्दी सभी बेंगलुरु का हिस्सा थे। हम उन सब अब उस पहचान को बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। कैबिनेट के कानूनी तौर पर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने का फैसला किया। भाजपा नेता डीवी सदानंद गौड़ा ने आरोप लगाया कि सरकार ने सरकार की दूसरी वर्षगांठ बनाकर लोगों का अपमान किया है, जबकि बेंगलुरु में बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कुशलनगर के बसवरहल्ली में पत्रकारों से बात की। उन्होंने मौजूदा कांग्रेस की सरकार लोगों को लूट रही है। बेंगलुरु अकेले राज्य के राजस्व का 67% योगदान देता है। हालांकि राज्य द्वारा बेंगलुरु के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि का उपयोग किया जाता है। पिछली भाजपा सरकार हर साल धनराशि का उपयोग करती है। उन्होंने कहा कि मैंने पिछले 75 वर्षों में इतनी भ्रष्ट सरकार नहीं देखी। व्हाइटफील्ड, करगोड़ी और चिल्लाघट्टा के बीच पर्पल लाइन पर मेट्रो सेवाएं शुक्रवार को सुबह 9:55 पर पूरी तरह से बहाल हो गई है। बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड BMRCL के तकनीकी खराबी के कारण सुबह 5 बजे से व्हाइटफील्ड स्टेशन से परिचालन रोक दिया गया था। व्यवधान के दौरान
ट्रेनें केवल पर्पल लाइन पर हो, फार्म जनसांद्रा और चिलघट्टा मेट्रो स्टेशन के बीच ही संचालित हुई। बीएमआरसीएल ने पुष्टि की है कि व्हाइटफील्ड स्टेशन पर समस्या अब हल हो गई है और सामान्य सेवाएं बहाल हो गई हैं। यात्री अब बिना किसी रुकावट के पर्पल लाइन के पूरे हिस्से पर यात्रा कर सकेंगे। डॉक्टर समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा के सभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर जो भी देश को कहा वो पूरा किया। भारतीय सशस्त्र बलों ने आतंकवादियों को दंडित किया और उनके ठिकानों को नष्ट कर दिया। दुनिया ने भारत की ताकत देखी है। भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहलगाम घटना पर जो भी देश को कहा वो पूरा किया। ये भारत का अद्भुत सामरिक सामर्थ्य का परिचय है जिसे दुनिया स्तब्ध है। हथियार लॉबी, आज दुनिया की हथियार लॉबी हतप्रभ है कि भारत की ये स्वदेशी क्षमता इतने कम समय में कहां पहुंच चुकी है। भारत ने जो कहा था वही किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहलगाम घटना पर जो भी देश को कहा वो पूरा किया और ये दुनिया को स्तब्ध करने वाली घटना रही। जिस तरह से भारत ने उन टेररिस्टों को सजा दी जो पिछले 4-5 दशकों से न सिर्फ भारत को बल्कि दुनिया की शांति को बंधक बना चुके थे। उनके उन अड्डों पर जहां से निकले आतंकवादी दुनिया को तबाह कर रहे थे भारत के साथ साथ, और पिछले 15-20 वर्षों से 30 वर्षों से जो बड़ी घटनाएं भारत पे हुई जिसके जिम्मेदार मुख्य पात्र लोग थे, अब वो दुनिया में नहीं है। ये भारत का अद्भुत सामरिक सामर्थ्य का परिचय है जिसे दुनिया स्तब्ध है। स्पष्ट रूप से इस तरह की ताकत का परिचय या तो अमेरिका ने दिया है दूसरे देश में जाकर कार्रवाई करके, बाकी कुछ एक देशों के पास क्षमता हो सकती है, लेकिन किसी ने साबित नहीं किया भारत ने अपने यहां रहकर मर्यादित रूप में सिर्फ उन लोगों को जो इसके जिम्मेदार थे उनको तबाह कर दिया। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया था उससे बढ़कर साबित किया कि भारत का सामर्थ्य और भारत की क्षमता आज सैनिक स्थिति से क्या है। दुनिया स्तब्ध है कि भारत आज स्वदेशी टेक्नोलॉजी से कहां पहुंच चुका है। इसी तरह आप याद करें, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के ट्वीट पर भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तब राहुल गांधी लापरवाही भरे बयान दे रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कि कितने भारतीय वायुसेना के विमान गिरे। 11 मई को प्रेस वार्ता के दौरान एयर मार्शल भारती ने कहा था कि हम युद्ध की स्थिति में हैं। हमारे लिए उस सवाल का जवाब देना समझदारी नहीं है। राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ बातचीत में व्यस्त लग रहे हैं। कैसे भारतीय सेना और सेना का मनोबल कमजोर किया जाए। आज पाकिस्तान की एक वरिष्ठ नेत्री मरियम नवाज ने बयान दिया कि 6 और 7 मई की रात और 9 मई को भारत की कार्रवाई के कारण पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे समय में विपक्ष के नेता और निशान पाकिस्तान राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। आपके बयान का समर्थन पाकिस्तान में होना, वहां की संसद में उन्हें चलाए जाना, कांग्रेस के नेताओं के बयान का सहारा लेकर भारत को बदनाम करना पाकिस्तान द्वारा, और आपका मौन रहना, आप किस तरफ हैं? आप भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं या पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान हैं? जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो किस तरह के लापरवाह बयान राहुल गांधी जी द्वारा दिए जा रहे हैं? जब भारत को एकजुट हो जाना है, 140 करोड़ नागरिक
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की वीर सेना को खुली छूट दी है। उस वक्त लोकतंत्र का एक अहम स्तंभ नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष की कांग्रेस पार्टी भी है। और जिस तरह से अपरिपक्व ऐसे वक्तव्य जो सच्चाई से कोसों दूर हैं, गैर जिम्मेदाराना है, ये वक्तव्य नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी द्वारा समय समय पर दिए जा रहे हैं। और इसीलिए बड़े भारी मन से, बड़ी पीड़ा से ये प्रेस वार्ता करके अमर्यादित चरित्र जो राहुल गांधी का बन गया है, इसको इंगित करने का प्रयास है। ये पूरा देश आज कह रहा है जो बात मैं इस मंच से अपने साथी प्रदीप भंडारी जी के साथ आपके समक्ष रख रहा हूं। आज राहुल गांधी से ये देश सवाल पूछ रहा है। राहुल गांधी जी, आप देश के प्रधानमंत्री जी के साथ मतभेद रखते हैं। ये ठीक है, लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करना, आपके बयान का समर्थन पार्टी श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की प्रगति पर मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि भगवान राम, उनके भ्राता लक्ष्मण और मां सीता की प्रतिमाएं जयपुर से रवाना हो चुकी हैं और आज किसी भी समय परिसर के अंदर पहुंचा दी जाएंगी। जो धार्मिक कार्यक्रम है वे सभी 3 तारीख से शुरू होंगे और 5 तारीख को इसका समापन होगा। इसी के साथ मुख्य मंदिर के जितने भी निर्माण कार्य होंगे वे पूरे हो जाएंगे। रखरखाव का कार्य जारी रहेगा। यह अपने अपने बहुत प्रमुख बात है। परिसर में जो अन्य निर्माण कार्य हो रहे हैं उनके भी सितंबर अक्टूबर में पूरे होने की संभावना है। एमयू के मुस्लिम स्कॉलर डॉक्टर रेहान अख्तर कासिम ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को लेकर कहा कि वक्फ कानून संसद के दोनों सदनों में गहन बहस के बाद लाया गया था और जब चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट में कई दिनों तक सुनवाई चली। कासिम ने बताया कि मुस्लिम पक्षकारों और सरकार दोनों ने अपने अपने तर्क रखे। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में एक ऐसा कानून बनेगा जो देश के हित में होगा और व्यापक रूप से स्वीकार्य होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो ये वक्फ कानून को लेकर बहस हुई, आपने देखा जब ये कानून इंट्रोड्यूस हुआ था तो दोनों पार्लियामेंट में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बहुत बहस हुई, हर बिंदु पे बहस हुई। और जब ये कानून बना उसके बाद तमाम लोगों ने जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुनवाई की, कई दिनों से सुनवाई चल रही थी, चाहे वो मुस्लिम पक्षकार हों या सरकार के लोग हों। जिन चीजों पे लोगों को ऑब्जेक्शन था उसको सरकार ने भी जस्टिफाई करने की कोशिश की और मुसलमानों की तरफ से जो वकला थे उन लोगों ने भी उन चीजों को खूब अच्छे तरीके से रखा। हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा कानून सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में बन के आएगा जो देश हित में होगा और तमाम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह नया भारत है। नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं। भगवान हनुमान ने भी यही कहा था। जब वे रावण के सामने आए तो रावण ने उनसे पूछा कि उन्होंने उनके बेटे को क्यों मारा। उन्होंने कहा कि उन्होंने अक्षय कुमार को नहीं मारा बल्कि केवल जवाबी हमला किया और अक्षय कुमार इसलिए मर गया क्योंकि उनमें कोई ताकत नहीं थी। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, उन्होंने हमारे निर्दोष लोगों पर हमला किया और उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मार दी। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सैन्य कार्रवाई में 124 से अधिक आतंकवादी मारे गए। इसलिए यह भारत की गलती नहीं है, यह उन लोगों की गलती है जो पाकिस्तान में बैठे हैं और आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को डुबो देगा। पाकिस्तान के दिन अब गिने चुने रह गए हैं। पाकिस्तान ने बहुत कुछ जी लिया है, 75 साल से जेल में बंद है। अब समय आ गया है कि उसे अपने ही कर्मों की सजा भुगतनी पड़ी। पाकिस्तान पे हमला तो भारत की सेना ने नहीं किया था, धर्म पूछ करके गोली मारी थी। कानपुर के शुभम द्विवेदी को मात्र 2 महीने पहले शादी हुई थी उस युवक की,
उसकी पत्नी के सामने गोली मार दी गई। तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में इसमें 124 से अधिक आतंकवादी मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान पे हमला तो भारत की सेना ने नहीं किया था, उसने हमारे निर्दोष लोगों पर प्रहार किया था। धर्म पूछ करके गोली मारी थी, 3 वर्ष तक के बच्चे को गोली मारी थी। कानपुर के शुभम द्विवेदी को मात्र 2 महीने पहले शादी हुई थी उस युवक की, उसकी पत्नी के सामने गोली मार दी गई। 26 ऐसे लोगों को निर्मम हत्या कर दी गई और उसके बाद 24 से बदले 124 लोग भारत के बहादुर जवानों के, भारत के तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में इसमें 124 से अधिक आतंकवादी मारे जा रहे हैं। तो गलती भारत की नहीं, पाकिस्तान के उन लोगों की है जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवाद को पनपा रहे हैं। और ये आतंकवाद में विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा। एक ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। वैसे भी हमारे एक पूज्य संत ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान तो ये भविष्यवाणी है, पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। और याद रखना, जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो वह कृत्रिम होता है, और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उसकी एक निश्चित लाइफ होगी, उससे ज्यादा नहीं। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है, वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। लेकिन आज भारत के बहादुर जवान जिस मजबूती के साथ पाकिस्तान को उसका जवाब दे रहे हैं, हर भारत। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का ज्यादा लेंगे, ब्रेक के बाद नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दिनांक पहले पाकिस्तानी अमेरिकी ने पहलगाम हमले पर बात की जब वह राजधानी यहूदी संग्रहालय के बाहर 2 इजरायली दूतावास के कर्मचारियों की हत्या के खिलाफ एक प्रदर्शन में भाग ले रही थी। उन्होंने कहा, मैं आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ हूँ। जो कोई भी किसी व्यक्ति को मारता है वह अपने धर्म का सच्चा प्रतिनिधि नहीं है। मैं उस हमले के खिलाफ हूँ, यह मानवता की हत्या थी, यह उचित नहीं है। लोग मर रहे हैं और हमें इसे खत्म करने की जरूरत है। Not too long ago, there was a similar attack that was carried out against 26 Hindus in Kashmir. You being somebody of a Pakistani heritage, how do you react to that? Well, as I said earlier, I'm against terrorism and violence, regardless of people coming from which religion. I mean, I totally believe whoever kills one person, they're not a true representative of their religion. So regardless, whoever was, he initiated that attack, I'm against that. It was a murder of humanity. So yeah, that's not justified at all. Regardless, it was from Indians, it was from Kashmiris or Pakistanis or any other people, religion, but that's not justified. व्हाइट हाउस के बाहर इजराइल दूतावास के कर्मचारी यारोन लिचिंस्की ने और सारा मिलग्रिम को श्रद्धांजलि देते लोग बुधवार रात को वाशिंगटन डीसी में कैपिटल यहूदी संग्रहालय के बाहर इस जोड़े की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मारे गए इजरायली कर्मचारियों को श्रद्धांजलि देने वाली एक महिला ने कहा, बहुत दुख और गुस्सा है इन 2 युवक लोगों की इतनी जल्दी और बेवजह हत्या कर दी। Anti-Semitism, and it hurts. 2 very young innocent Jewish were killed, but humanity has been attacked. We have to stand together, stop this
criminals. Happened. I'm pretty connected to the embassy and the people at the embassy, and my first reaction was, oh no, do I know them? Initially we heard that there was one person dead and multiple casualties, and then we learned as the night unfolded that this young couple was murdered in cold blood, leaving an event that was actually to discuss additional humanitarian aid to Gaza. And then we learned more over the hours. Years. We have some personal contact with the people who are deceased, but this is not about that. It's not about being a Zionist or being Jewish or being affiliated with the government or not. This is pure anti-Semitism, and it hurts each and every member of the community. We are one people. What we endure since October 7, we never imagine what. फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का चल लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक नजर फिल्मी समाचारों पर। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आई, जिसके दौरान उन्होंने ग्रे कलर का आउटफिट पहना है। वहीं इस आउटफिट में वो बॉस लेडी लुक कैरी करती नजर आई। देखिए कैसे ग्रे कलर के आउटफिट में वो प्यारी सी स्माइल के साथ पोज दे रही है। जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 13,000 रन पूरे कर लिए हैं, वे दुनिया के ऐसे 5 बल्लेबाज हैं जो ऐसा करने में कामयाब रहे। जो रूट ने टेस्ट में सबसे कम मैच खेलकर 13,000 रन पूरे करने का काम किया है। अब इसी बीच उनके निशाने पर सचिन तेंदुलकर का एक और कीर्तिमान आ गया है। कभी इसे अटूट माना जाता था, लेकिन अब इसे बच पाने की संभावना काफी कम नजर आ रही है। वैसे गुजरात में मुख्य समाचारों पर बीदर दक्षिण क्षेत्र के मंडली के फर्स्ट एड कॉलेज में एनएचसीसी कैंप। मोटिवेशनल स्पीकर मनोहर जामा का 24 मई शनिवार शाम 6 बजे उदगीर शहर में कार्यक्रम। कर्नाटक सरकार ने रामनगर का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण जिला। 75 साल में इतनी भ्रष्ट सरकार कभी नहीं देखी। कर्नाटक के पूर्व सीएम सदानंद गौड़ा ने वर्षगांठ समारोह को लेकर कांग्रेस की आलोचना की। दुनिया ने भारत की ताकत देखी। ऑपरेशन सिंधु को लेकर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण का बड़ा बयान। राहुल गांधी के ट्वीट पर जमकर भड़के गौरव भाटिया। राहुल गांधी को बताया निशान है पाकिस्तान। मानवता की हत्या, पाकिस्तानी अमेरिकी 3 हफ्ते से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।